پیر کامل۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی، وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا، پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پہ اسلام آباد میں ہی ہوں گا، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے، اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصا دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی، تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ I think you are the odd one out۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرایا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2-3 سال پہلے ہی میں اوڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اللہ کا خاص کرم، اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ، سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے، سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمین پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپنسری بھی بنوائی، تم اس ڈسپنسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں جدید سامان ہے اس میں، میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول ڈسپنسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اور اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔
क्यों कर रहा हूँ ये तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गांव में इतनी गुर्बत थी कि ये सवाल पूछने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी कभार अपना गांव जाया करते थे। ये हमारे लिए तफरीह थी। हमारी हवेली के अलावा गांव का कोई मकान पक्का नहीं था और सड़क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको यूं लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। अब अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की तरह हम जंगल में दंदनाते फिरते, यही सोच कर कि हम सब से मरऊब हैं और कोई भी हमारे जैसा न कोई हमारा जैसा नहीं, न कोई हमारी तरह रहता है, न हमारे जैसा खाता है, न हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के इंसान जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हो सकता है कुछ इंसानों को इससे खुशी महसूस होती हो कि उन्हें हर नियामत मुयसर है और बाकी सब तरस रहे हैं, मगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होता था। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि मैं इसे हिलाता और सब कुछ बदल देता। नहीं, बेशुमार मसाइल। तुम्हें मैंने बताया है ना कि मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट। मैं और मेरा भाई दोनों शुरू से ही स्कॉलरशिप पे पढ़ते रहे, इसीलिए हम पर हमारे वालिदैन को ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ा। खुद वो भी कोई फजूल खर्च नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रही। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर या इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वो करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने के बजाय उन्हें अपने गांव जाना चाहिए, वहाँ कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किलात का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। गाँव में न बिजली थी, न साफ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ कहाँ भाग कर ये सारी चीज़ें मंजूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलतें भी आ गई, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख्याल आया। मेरे वालिदैन की खुशी थी कि गवर्नमेंट उनके उनके स्कूल को अपनी ज़ेर निगरानी ले ले, इसमें अपने टीचर्स भिजवाए और कुछ अरसे के बाद इस स्कूल को अपग्रेड कर दे। मगर महकमा तालीम के साथ चंद राबतों में ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होने की सूरत में उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें। उन्होंने बाकायदा उसके लिए फंड्स रखे हुए थे। मगर तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद इस स्कूल का क्या हाशर होता। सबसे पहले वो फंड्स जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए खुद बाबा इस स्कूल को चलाते रहे। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला, मगर वहाँ एक बच्चा भी नहीं गया। फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में उनकी मदद की। इस तरह उसकी अपग्रेडिंग होती गई। मैं उन दिनों लंदन में पढ़ता था और मैं वहाँ रुपये बचा बचा कर भेजा करता था। अभी भी हम इसको और तरक्की दे रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गांव की आबादी भी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन गांव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गांव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आगे पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, कुछ मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। उनकी ये नस्लें, इन नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज लेकर निकली। कौन कह सकता है, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं हर माह एक वीकेंड पे गांव जाता हूँ। वहाँ दो कंपाउंडर हैं, मगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पे मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड्स पे भी हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और इस सब के लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। इनमें इन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, इनकी ग्रेजुएटी से उसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से उनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। इसके बाद में और मेहरान भी इसमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक खास हिस्सा हर माह गांव भिजवाता हूँ। इससे डिस्पेंसरी बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पे जाते हैं, वो कुछ चार्ज नहीं करते। उनके लिए यह सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स में इसी तरह के लग जाते हैं और स्कूल के पास अब तक इतने फिक्स्ड डिपार्टमेंट्स हो चुके हैं कि उनसे आने वाली रकम टीचर्स की तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। हम चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ, सालार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ़ होगे, फुरकान ने उसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन में मैं फारिग ही हूँगा। क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत आसानी से पहुँच सकते हो, सिर्फ सुबह कुछ जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर तुम वाकई वहाँ चंद घंटे गुजारना चाहते हो, वरना तुम
ورنہ پھر تم واپس آکر خاصے تھک جاؤگے۔ فرقان نے اس سے کہا، میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے ان کی گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں ہی بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی، انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں میری خدمت کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم نے بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ اونکولوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی کمی پوری ہوتی ہے، روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت قانع ہوں سالار، پوری فیملی بہت قانع ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا، گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ تو سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، اب تم سے یہ سوال پوچھوں گا کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، اس نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں، نہ اب نہ پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو، سالار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی بات اور ہے، مگر ایک اکانومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے ادارے کو دے سکتے ہو، جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی بھوک، غربت اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں، سالار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں، تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو، تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔
उसे एक छोटा सा हॉस्पिटल कहना ज्यादा बेहतर था। डॉक्टर के न होने के बावजूद वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा था। उस दिन फुरकान की आमद मुतवक्का थी और उसके इंतजार में मरीजों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फुरकान आते ही मसरूफ हो गया। हॉस्पिटल के अहाता मरीजों से भरा हुआ था। वहाँ हर उम्र में और हर तरह के मरीज थे, नौज़ायदा बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। सालार अहाते में लाशऊरी तौर पर चहलकदमी करता रहा। वहां मौजूद चंद लोगों ने उसे भी डॉक्टर समझा और उसके करीब चले आए। सालार उनसे बातचीत करने लगा। जिंदगी में वो पहली बार कैंसर के एक स्पेशलिस्ट को एक फिजिशियन के तौर पर चेकअप करते और नुस्खे लिखते देख रहा था, और उसने एतराफ़ किया उसने ज़िंदगी में फुरकान से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा था। वो बेहद प्रोफेशनल और बेहद नरम मजाज था। इस तमाम अमल में उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गायब नहीं हुई थी। सालार को यूं लग रहा था जैसे उसने अपने होठों पे मुस्कुराहट को किसी चीज के साथ चिपकाया हुआ था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने सालार को एक आदमी के साथ स्कूल भिजवा दिया था। वह वहां उसके वालिदैन से मिला। वो उसकी आमद से पहले ही बाखबर थे। यकीनन फुरकान ने उनको फ़ोन करके बता दिया था। वो उनके साथ स्कूल में फिरता रहा। स्कूल की इमारत उसके तवक्कात से बरक्स बहुत वसी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसे वहां मौजूद बच्चों की तादाद देखकर भी हैरत हो रही थी। वहां कुछ घंटे रुकने के बाद वह उन दोनों के साथ उनकी हवेली में आ गया। हवेली के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बे इख्तियार उसका दिल खुश हुआ था। उसे इस गांव में इस किस्म की शानदार लॉन की तवक्का नहीं थी। वहां पौधों की भरमार थी, मगर बेतरतीबी नहीं थी। बहुत शानदार लॉन है, बहुत आर्टिस्टिक। वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। ये शकील साहब का शौक है, फुरकान की अम्मी ने कहा। मेरा और नौशीन का, फुरकान के वालिद ने इजाफा किया। नौशीन, साला ने सवालिया अंदाज में कहा। फुरकान की बीवी, या आर्टिस्टिक टच उसी का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली लाहौर में होती है। सलार को याद था। हाँ, वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड वहाँ यहाँ गुजारता है, फिर वो अपनी फैमिली को यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स उनके बच्चों के लिए लगवाई है। नौशीन भी डॉक्टर है। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ थी, इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता उनकी बातें सुनता रहा। वो उनके साथ लंच करने के लिए घर पर आया था और उसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा, मगर जब खाना लगना शुरू हो गया तो उसने फुरकान के बारे में पूछा। वो दोपहर का खाना यहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है। इसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। इसके पास मरीज इतने होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारग नहीं होता, खाना वाना बिल्कुल भूल जाता है। फुरकान की अम्मी ने उससे कहा। वो उनके साथ बातें करते करते खाना खाने लगा। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीजन में ही काम करते रहे थे और 20वीं ग्रेड में रिटायर हुए थे। ये जानकर सालार का ताल्लुक भी फाइनेंस से था। उनके जोश में कुछ इजाफा हो गया था। सालार को उनसे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। सालार ने उनसे इस स्कूल के हवाले से बात की। स्कूल के लिए हमें फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खासे फ्रेंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉग भी बनवा रहा है, बल्कि बन ही चुका है, तुमने तो देखा ही है। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी करी करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की ज़रूरत है और हम इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफ़ा दरखास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आकर रहने को तैयार नहीं, और हमें एक डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। तुमने मरीजों की तादाद तो देखी ही होगी। एक करीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कुछ कर सका ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल के लिए भी कुछ करूँ। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूँगा आपको यूनेस्को की तरफ से किसी एनजीओ के ज़रिए हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ जो तुमने देखा है, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली में, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकिफ़कारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कुछ किसी हुकूमती या बैनुल अक़वामी एजेंसी के ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी ख़त्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हैं वो हमें अपने वसाइल से ही करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाएं। सालार बेइख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गाँव तुम्हें एक मुख्तलिफ गाँव में मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज देखी है वो तब नहीं होगी। उनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। सहपहर के बाद उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था मैं खुद तुम्हें वापस छोड़कर आऊँ, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज चेक नहीं कर सका तो उन्हें आप बहुत जहमत होगी, इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर्स को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। इसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा।
जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिलना, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिद के साथ चाय पी ली। गाड़ी तब वहाँ आ चुकी थी। फिर वो दोनों गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबहाली भी अब कम हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में उन्हें छोड़ कर आता हूँ, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो, उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं अब तो अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा तुम्हारी फ़्लाइट कब है। सालार ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सालार ने उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था कि उसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान की इतने करीब लाई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहाँ एक दिन के लिए गया था और उसने फुरकान को फ़ोन पर उसकी इतला दी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से एकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झुर्री से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार ने उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बड़ी संजीदगी से सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी ममासलत थी कि उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसे बड़ी संजीदगी से इतला दी गई। मुझसे मिल लेंगे, सालार ने कदरे महजूज होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आ गया। क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ। आप उन्हें जाकर बताएं कि सालार अंकल आए हैं तो वो मुझसे मिल लेंगे, सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं। सालार को बेइख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसे, वो बेइख्तियार बिगड़ी। सालार पंजों के बिल उसका मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता, उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब कुछ करीब से उसका जायजा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ ने दरवाजे की झुर्री में से झांकती हुई मोहतरिमा के तासरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे, उसके जुमले से ज्यादा उसके तासरात ने सालार को महजूज किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैं क्यों अच्छा नहीं लगा, उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस नहीं अच्छे लगे, उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दरवाजे की झुर्री में से इमामा के अक़ब में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाते हुए दरवाज़ा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहा कर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब डाइनिंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। अंकल सालार से मिली आप? फुरकान ने सालार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पे बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते, उसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बुरी बात इमामा, ऐसे नहीं कहते, फुरकान ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाएं और उनसे हाथ मिलाएं। उसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सालार की तरफ जाने के बजाय एकदम भागती हुई बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि उसे तुम अच्छे नहीं लगे, वरना उसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज उसका मूड भी कुछ ऑफ है। फुरकान ने मुस्कुराते वजाहत की। ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर मैं इसे अच्छा लगता, सालार ने सोचा। चाय पीते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों के दौरान सालार ने उससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। उसने सरसरी अंदाज में कहा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान एकदम खुश हुआ। वो इस बार डॉक्टर वहाँ रहेगा और ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रुका। वहाँ जाने से पहले मुझे ये तवक्का नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्केल पर और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तो तुम लोगों के काम से दरहकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरी ऑफर भी वही है। मैं इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, उसने संजीदगी से फुरकान से कहा। सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं चाहूँगा तुम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो।
تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں نہیں رہ سکتا۔ تمہاری طرح میری فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تم تو چائے پیو، پھر بھی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔